Hello everyone. Am I audible? Just nod your head if you can hear me. Okay. Hello everyone. Om Namah Shivaya. Thank you for joining 21 days money manifestation sadhana. So all are excited, ready, लक्ष्मी माता के साथ कनेक्शन बनाने के लिए रेडी। क्या बात है, एक्सीलेंट। ओके, so everyone has notebook, pen, notepad, pen. Just type in the chat box. Yes. Okay. Very good. Excellent. Okay. और एक इंस्ट्रक्शन था कि we need 5 elements. Everyone ready with the 5 elements? Type in the chat box. Yes. Super. Excellent. Okay. How many of you know me? Type in the chat box me. Oh, very good. पहचानते हैं. How many of you don't know who am I? Type in the chat box, don't know. सब मुझे पहचानते हो. मेरे लिए ही नए चेहरे बस, मतलब बाकी आप लोग सब मुझे जानते हो. अच्छा, डोंट नो. ओके. तृप्ति ठाकुर. ओके. ओके, सो देर आर फ्यू faces. ओके. तो मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी. बिफोर दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ओमकार साधना. ओके. अब क्या कर रहे हैं? 21 days मनी मैनिफेस्टेशन साधना. ओके. Sit straight, take a deep breathe in, breathe out. अभी जिनके जिनके सामने ये 5 elements है ना, फायर इग्नाइट कर दीजिए. धूप अगरबत्ती जो भी होगा वो भी इग्नाइट कर दीजिए. थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस पे बैठो. कैंडल होगा, दिया होगा, जो भी होगा. सेफ डिस्टेंस पे बैठो ताकि वो अगरबत्ती दूर हो आपसे. एक्सीलेंट. ओके. अभी हम we are starting with the manifestation, money manifestation sadhana. Okay. अभी हम ओमकार साधना कैसे करेंगे? दोनों हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के पूरा फोकस ऑन योर हार्ट चक्र. ओके. पूरा फोकस ऑन योर हार्ट चक्र. अभी आंखें खोलो, अभी आंखें बंद मत करो, मैं बताऊंगी. ठीक है. Okay. अभी हम साधना कर रहे हैं ना, तो वी नीड वन मीडियम ओमकार से कनेक्ट करने के लिए, राइट? मुझे देख लो अच्छे से.
इतने अच्छे से देखो कि आंखें बंद करके भी आपको मैं मुझे याद कर सकते हो। इतने इतने ही अच्छे से देखो बस। ठीक है। ड्रेस का कलर विलर नहीं, जो भी कलर दिख रहा है आपको। ठीक है। ठीक है? दोनों हाथ जोड़ के टेक a deep breathe in, breathe out. One more deep breathe in, breathe out. One more deep breathe in, breathe out. Now slowly, slowly close your eyes. चश्मिश लोग चश्मा उतारो. Slowly close your eyes. Now become aware about your both the hands touching each other. Become aware about your both the hands, palm touching each other. अपने दोनों हाथों की पांचों उंगलियां दूसरे हाथ के पांचों उंगलियों को टच हो रही है, फील कीजिए. Keep breathing very slowly. Keep breathing very slowly. धीरे धीरे आपका ध्यान आपके राइट हैंड पे लेके जाइए. आपकी राइट हैंड की पांचों उंगलियां अभी धीरे धीरे आपका ध्यान आपके लेफ्ट हैंड पे लेके जाइए. Take a deep breathe in, breathe out. Another deep breathe in, breathe out. Again, move your attention to your right hand, your right hand fingers. Now left hand fingers. You are breathing very slowly. You are breathing very deeply. आपका पूरा ध्यान अभी आपके हार्ट चक्रा पे है. The center of your chest is your heart chakra. आपका पूरा ध्यान आपकी हार्ट चक्रा पे है. आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पे है. अभी आपके हार्ट बीट्स को फील कर रहे हो आप आपके हार्ट बीट्स को धीरे धीरे फील कर रहे हो. Keep breathing very slowly. And now we are starting with the ओमकार. पूरे फोकस के साथ एकदम डीप ब्रीदिंग में पूरा फोकस आपके हार्ट चक्र पे.
Deep breathe in, breathe out. One more deep breathe in, breathe out. And slowly, slowly open your eyes. Slowly, slowly open your eyes. Once again, Om Namah Shivaya to each one of you. Thank you for joining 21 Days Money Manifestation Sadhana. Abhi, those who don't know me, a little bit about me. Okay, I am, हाँ, पढ़ी लिखी हूँ मैं. I am MBA in marketing. Okay. PhD in double PhD in graphology. Okay. I'm a neuroanalyst, astrologer, past life healer, angelic healer. Okay, I'm practicing all these things. And I'm teaching my students different healing modalities. I'm teaching astrology, I'm teaching numerology, I teach graphology, I'm teaching past life healing. ये सबसे भी ऊपर, I'm really blessed to be element whisperer. How many of you have heard about element whisperer? So I'm blessed to be element whisperer. It's a siddhi of talking and communicating with the 5 elements. It is fire, air, space, earth, and water. Okay. तो ये 5 elements के साथ I can communicate
एंड इनके साथ कम्युनिकेट करके आई एम एबल टू फाइंड आउट एक्यूरेट आकाशिक रिकॉर्ड ऑल्सो। ओके, इसके ऊपर आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी इज achiever of another siddhi, I can say. I can communicate, I can invoke the divine higher consciousness. That is, I can invoke, I can communicate with the ultimate energies of Brahma, Vishnu, Mahesh. अगर आपने सुना होगा, कभी कभी लोग पूछते हैं ऐसे दिखते हैं क्या मुरलीधर द्वारकाधीश, तो ये हमने ह्यूमंस ने पर्सोनिफाई किया हुआ उनका रूप है जो हमने बनाया हुआ है। ओके, हायर कॉन्शियसनेस इज जस्ट वन एनर्जी, इट्स कंप्लीटली प्योर हायर कॉन्शियसनेस। ओके, एंड पास्ट लाइफ, एक मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, बिकॉज yesterday was the biggest day for me. I'm practicing past life healing since last 5-6 years now. और खुद का ही किया था सबसे पहले। ओके, और प्रैक्टिस कर रही थी 7-8 महीने बाद पता चला कि एक जन्म इतना भाग्यशाली था कि साईं बाबा के साथ थी। तब से बड़ी इच्छा थी कि आप फिर से मिलो मुझे, तो बहुत नजदीक थी। और तब से लेके मतलब 4.5-5 साल से मैं पीछे पड़ी थी कि मुझे बात करनी है। कल अमावस थी ना, कल yesterday was a big energy day and I'm really blessed and very proud to say that कि बाबा ने वो सिद्धि दे दी कि आई एम एबल टू कम्युनिकेट विद दैट डिवाइन एनर्जी ऑल्सो। मेरे लिए बहुत बड़ा थी, कहीं ना कहीं पे पता था कि कुछ तो बड़ा होगा, कुछ तो बड़ा होगा उस दिन। और फिर हमने ये मनी मैनिफेस्टेशन साधना हमने आज से किया। थोड़ी बहुत हिंट मुझे लगी थी कि कुछ तो अच्छा हो सकता है, और नहीं भी मिले तो भी उनके ब्लेसिंग से मैं स्टार्ट कर दूंगी। बट yesterday was a very big day for me. तो ये दिस इज व्हाट आई एम। Okay, and with this siddhis I am really helping people to find out their life purpose, to find out their soul purpose, to help them to come out from the different challenges, financial challenges, relationship challenges। ये सब करते करते ये जब हम साधना करते हैं, काफी कंसल्टेशन में हमें समझ में आया कि बाय द वे माय हस्बैंड इज आल्सो PhD इन एस्ट्रोलॉजी। तो ये साधना करते करते समझ में आया कि पीपल आर कहीं ना कहीं पे पीपल आर वेरी स्टक विद द financial challenges, with the relationship challenges, career related challenges, and we started searching कि ऐसा भी क्या रीजन है। अभी मेरे लिए बेनिफिट ये था कि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश को की एनर्जी को अगर हम इन डिवाइन एनर्जी को इन्वोक कर सकते हैं, तो चलो विष्णु भगवान को ही पूछ ले कि लक्ष्मी माता को पसंद क्या है ना। और फिर मैंने वो साधना शुरू की कि हायर एनर्जीज के साथ एक होता है कि एक टाइम पे एक सब्जेक्ट। अपना कैसे होता है, वी आर मल्टीटास्कर ना, उधर वैसे नहीं होता है। हम एक टाइम पे 10 चीजें करते हैं, वहां पे वो नहीं होता है, और वहां पे वो अलाउ भी नहीं होता है। इसीलिए वी नीड टू बी वेरी फोकस इन साधना ना, एक टाइम पे एक चीज बोल, उसको कंप्लीट कर फिर नेक्स्ट, ऐसे होता है। वी वर सर्चिंग इट, देन वी अंडरस्टूड कि क्या एग्जैक्टली हम सबका प्रॉब्लम है। कि वी ऑल आर बिजी इन अर्निंग मनी, एम आई राइट इन सेइंग, है ना, लेकिन खुश नहीं है, है ना, खुश नहीं है, नहीं तो इतने बिजी है कि स्ट्रेसफुल है। फिर हमें पता चला कि जो चीज हमें चाहिए
उसके साथ तो हमने दोस्ती ही नहीं की है। एम आई राइट इन सेइंग? के साथ तो हमने दोस्ती ही नहीं की है। बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर दैट money is the spiritual energy? How many of you know money is the spiritual energy? How many of you know, how many of you feel काहे की स्पिरिचुअल एनर्जी, कागज के तो नोट है, ऐसा है कोई? नहीं, इट्स एन एनर्जी, राइट? और कौन है ये? माता लक्ष्मी। क्या? अभी हमें अगर ये चाहिए, हमें अगर ये चाहिए और हमेशा के लिए चाहिए, बाय द वे इसमें होता क्या है, हमारे पास लक्ष्मी नहीं है ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हमारे पास है, हर महीने आती है ना, वीकली आती है, मंथली आती है। प्रॉब्लम इज दैट कि रहती नहीं है, स्टे के लिए नहीं आती है ना? जैसे हम जाते हैं ना घूमने, एक वीक के लिए, उधर वो होटल में रूम बुक किया, उधर रह लिए, फिर बुकिंग खत्म, निकलो, वैसे आती है ना? दैट इज द प्रॉब्लम। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? दैट इज द प्रॉब्लम। तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि आती नहीं है, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि आती नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम है कि रहती नहीं है ना? फिर हमने सोचा कि पूछ ही ले कि भैया आप क्यों नहीं रहते हो। हमने सोचा कि पूछ लो कि बाबा इतने सब प्रॉब्लम्स, एवरीवन इज बिजी बिहाइंड यू ओनली। फिर जवाब मिला कि मुझे कोई समझता ही नहीं है। अभी ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था जब मुझे ये जवाब मिला कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। Here I would like to ask each one of you, how many of you feel कि हम लक्ष्मी को समझते ही नहीं? टाइप इन द चैट बॉक्स मी। या फिर हमने समझा ही नहीं? मुझे समझते नहीं मतलब मेरा नेचर नहीं समझते, मेरा स्वभाव नहीं समझते। और कभी ऐसा दोस्त अपने साथ दोस्ती करता है जिसको जिसको हम जानते ही नहीं है, जिसका नेचर हमको नहीं मालूम, वो अपना दोस्त बनता है क्या कभी? नहीं। हम लक्ष्मी माता को पाना चाहते हैं डर डर के। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? हम लक्ष्मी माता को पाना चाहते हैं स्ट्रेस में, कि तू चल, तू नहीं आई तो मैं ईएमआई कैसे भरूं, तू नहीं, तू चल, तू नहीं आई तो मैं घर कैसे चलाऊं। सोचो, किसी भी एक इंसान के बारे में सोचो आपके लाइफ के, कि आप उसको हर बार ऐसा खींचोगे, चल इसमें मेरा फायदा है, तू चल मुझे ये करना है, वो आएगा आपके साथ? वो आएगा क्या? सोचो। नो मैटर वो आपसे कितना भी प्यार करता हो, वो आएगा? वी आर इन कनेक्शन विथ लक्ष्मी माता और वी आर इन ऑब्सेशन विथ लक्ष्मी माता? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट व्हाट वी आर डूइंग? है ना? लक्ष्मी माता से प्यार करने के लिए टाइम कहाँ है हमारे पास? पहले तो ईएमआई डेट का रिमाइंडर है, फिर ये है, फिर वो है, फिर घर में और एक रहती है कॉल्ड एज वाइफ, उसका टेंशन, ये खर्चा है, वो खर्चा है, वो खर्चा है, इधर घुमाने लेके चलो, उधर घुमाने लेके चलो, है ना? एटीएम कार्ड डिमांडर ऑल द टाइम, राइट? हाउ मेनी हस्बैंड हैज सच वाइफ? लकी यू आर, लकी यू आर, क्योंकि खर्चा करने को बोलती है ना। लक्ष्मी माता का स्वभाव बड़ा चंचल है।
और ये चंचल स्वभाव वाली एनर्जी को अपने पास कैसे बिठाना है, ये हम इन 21 डेज में सीखेंगे। लेकिन किसी के साथ भी दोस्ती करने से पहले हम क्या क्या सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, किसी को इंस्टा पे फ्रेंड बना रहे हो या फिर एफबी पे फ्रेंड बना रहे हो, ये सब इंक्वायरी करते हो ना। फिर कुछ ज्यादा दोस्ती करनी होगी तो हम पूछते हैं तुम्हें क्या पसंद है, विच कलर इज योर फेवरेट कलर, है ना, ये सब चीजें हम पूछते हैं, राइट। तो ये हम लक्ष्मी माता के साथ करेंगे। कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक स्पिरिचुअल गुरु हूँ, ओके, आप मुझे पहली बार देख रहे हो, पहली बार मिल रहे हो। जब आप मुझे पहली बार अगर देख रहे हो तो आप मेरे बारे में एक जनरल सा स्टेटमेंट बनाओगे बेस्ड ऑन माय प्रेजेंटेशन, मैं जैसे भी दिख रही हूँ, है ना। एक अपना आप जजमेंट बना दोगे कि अच्छा ऐसी होगी, है ना। लेकिन सपोज अगर फॉर एग्जाम्पल ये कमलेश जी ने अगर आपको पहले ही बता दिया और ये बहुत डेंजर है, हाँ, बहुत डेंजर है, वो फेस पे मत जाओ, बहुत स्ट्रिक्ट है, एकदम स्ट्रेट बोलती है, फिर देखती नहीं है आपके बाजू में कौन बैठा है। अगर ऐसे आपको इन्होंने बार बार बोला होगा, रोज 10-15 बार बोला होगा, तो आप मुझे मिलते वक्त कैसे मिलोगे, कैसे मिलोगे सोचो। कमलेश जी का हर एक सेंटेंस आएगा ना। अच्छा ये ऐसे हो सकती है क्या, वैसे तो अभी अच्छे से बात कर रही है, लेकिन मुंह पे बोलती होगी क्या कुछ कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आजू बाजू में सच में नहीं देखती होगी क्या, कुछ भी बोल देगी क्या इंसल्टिंग। मतलब मुझे जाने बिना, वैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कमलेश जी ऐसा नहीं करती और मैं ऐसी हूं भी नहीं, मुझे जाने बिना, मुझसे बात किए बिना, मुझे कुछ पूछे बिना आप क्या करते हो, खुद के ही मतलब लगा लेते हो। एम आई राइट इन सेइंग ऐसे ही करोगे ना, दिस इज व्हाट नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, इसमें किसी की गलती नहीं है ना, ह्यूमन ऐसे ही करेगा। अभी हुआ क्या है अपने साथ, लक्ष्मी माता को हाथ में लेने से पहले ही हमको बहुत कुछ सिखाया है। क्या क्या सिखाया है, क्या क्या सीखा है लक्ष्मी माता के बारे में, इजीली आती है, बिंदास यूज कर, टेंशन की बात नहीं है, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क पे फोकस कर, ये सिखा है हमको। हमको क्या सिखाया, संभाल के, खर्च करना आसान है, कमाना बड़ा मुश्किल, एक बार खर्च हो गया कब आएगा पता नहीं। सिखाया ना ऐसे, मुझे भी सिखाया था ऐसे, है ना। और क्या, पसीने से आती है, एसी नहीं लगाने चाहिए हमने कहीं पे, है ना, पसीना आएगा लक्ष्मी माता आ जाएगी, दिन रात पसीने से आती है ना। रात को पसीना कैसे आएगा, चद्दर देख के पैर फैलाना चाहिए, वेरी गुड, है ना, ये सिखाते हैं ना। चद्दर बड़ी लो सिखाया क्या, चद्दर ही बड़ी ले ले, बिंदास चद्दर बड़ी ले ले, सिखाया, ये सिखाया। मतलब ये जिसने भी हमको सिखाया
हमने लक्ष्मी माता के पास कैसे देखा? और क्या? खुद के लिए खर्च मत कर। खुद के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, ये भी मुझे भी सिखाया था, ये जितना है उसमें खुश रहो। है ना? आपको नहीं सिखाया, मुझे सिखाया था ये सब। और फिर क्या? 1000 की चीज 500 में मांगो। सिखाया आपको ये? और वो अपनी प्यारी लक्ष्मी माता कैसी है ये जानने से पहले ही हमने क्या कर दिया? स्टैंप लगा दिया कि आप ऐसे हो। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? टाइप इट इन द चैट बॉक्स मी इफ यू आर रियली अग्री टू दिस व्हाट आई एम सेइंग। रियल लाइफ एक्सपीरियंस। अपने लॉजिकल माइंड को क्या लगता है, क्या सही क्या गलत, वी आर नॉट डूइंग दैट नाउ। क्या बात है? सब मेरे जैसे ही हो आप लोग, सब सब एक ही ट्रेन में है ना, सब एक ही ट्रेन में। अब लक्ष्मी माता बोलती है, हे भगवान, मैं तो ऐसी हूं नहीं। है, मैं तो ऐसी हुई नहीं, क्या इंप्रेशन बना है मेरा। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक दिस, कि बहुत बुरा लगता है कि यार लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं, मैं ऐसी हूं ही नहीं। ये लोग ने तो अपने आप ही अपना इंप्रेशन बना लिया है। पता नहीं इनको किसने बोल दिया। एक बार आके पूछो तो सही कि मैं ऐसी हूं कि नहीं। एक बार आके ट्राई तो करो। होता है ना ऐसे। लेकिन अपने लाइफ में दो चार जन ऐसे होंगे। लक्ष्मी माता के लाइफ में सब ऐसे ही है। सब है, हम सब ऐसे ही मिले उनको। यहाँ से अपनी शुरुआत है ना? व्हाट इज इम्पोर्टेंट फर्स्ट, उनका नेचर समझो कि कैसी है लक्ष्मी माता, है ना? उनको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद नहीं है, उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं। है ना? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। रिस्पेक्ट तो उसके बाद में आएगा, राइट? अभी किसी का रिस्पेक्ट हम प्यार से कर सकते हैं कि डर से होता है? किसी का अगर आपको रिस्पेक्ट करना है तो प्यार से रिस्पेक्ट होगा कि डर से होगा? प्यार से ही होगा। प्यार से ही होगा, राइट? हम क्या करते हैं लक्ष्मी माता से, प्यार करते हैं कि डरते हैं? हम डरते हैं। एम आई राइट इन से हम डरते हैं? क्या हम अपने हस्बैंड को बोलते हैं आई लव यू लेकिन तुमसे बहुत डर लगता है? क्या हस्बैंड वाइफ को बोलेगा डर लगता है तुमसे पर आई लव यू? कैसे लग रहा है आपको सुनने को? कैसे लग रहा है? आप बोलोगे ना, एक ही बोलना, एक सेंटेंस बोल, क्योंकि एक ही सच है इसमें से। हम लक्ष्मी माता के साथ यही कर रहे हैं कि आपसे डर लगता है, आपका बहुत स्ट्रेस है, पर आप चाहिए। हम ये करते हैं ना? आपके वजह से भी बहुत स्ट्रेस है, पर आप चाहिए। आप किसी को बोलो तेरे वजह से बहुत स्ट्रेस है मेरी लाइफ में, लेकिन तू आ रोज मेरे घर पे, आएगा क्या वो? देखो कितने एक्सपेक्टेशन है हमको। और वो भी साक्षात वो डिवाइन एनर्जी से, वो तो हमारी जैसी भी इंसान नहीं है। तो व्हाट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रियलाइजेशन? हाँ, सही है डॉक्टर अर्चना, रॉन्ग सेटिंग, सॉफ्टवेयर सेटिंग ही अलग। कोई आईटी वाला होगा तो बुला लो, बोलो भैया सेटिंग चेंज करके दे। फिलहाल तो मैं ही लग रही हूँ मुझे आईटी वाली, ये सेटिंग चेंज करने वाली। कोडिंग ही चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ सेटिंग से क्या होगा? पूरा कोडिंग ही चेंज करना पड़ेगा।
सो व्हाट इज योर बिगेस्ट रियलाइजेशन? आपके पास जो नोटबुक है उसमें लिख लीजिए, क्योंकि हमें लक्ष्मी माता को बताना पड़ेगा ये ये मेरा रियलाइजेशन है। अभी गलत सही इसमें अभी मत जाइए, वी विल सी दैट। फिर जिसने ये सिखाया उसको 31st को केक भेज देंगे। What is your biggest realization about the money you are handling now? एकदम विक्टिम विक्टिम मोड में मत जाओ, हाँ। कैसी हूं मैं, शिट यार, इतना भी नहीं समझ में आता क्या, ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा बेचारा भी मत बनो, ठीक है? तो बेचारे बेचारे लोग, उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं है। कैन वी हैव 2-3 शेयरिंग्स? क्या क्या रियलाइजेशन तो मुझे भी समझ में आए, थोड़ा मैं कन्वे कर दूंगी उनको। यू कैन अनम्यूट एंड शेयर विथ मी। यस डॉक्टर अर्चना। राधे राधे बताइए। ओम नमः शिवाय। First of all, thank you so much for giving us totally different perspective while listening and interacting. Also, I was very bad about our perception towards Lakshmi. We never consider God as a human being or as a personality. We always we have kept them at a very different level. They are at different realm, but we have a lot of fear about it. We are God fearing, हम्म। God loving people, and we need to be friendly with the. We have to consider him as one of our best friends. There shouldn't be any prefixed notions about her. हम्म। ये है कि वेरी जो भी हमने अभी डिस्कस किए हैं, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो चीजें चाहिए वो नहीं तो हम नहीं कि- कर रहे। इट्स वेरी इजी टू मेक गोल्डन। ओके, वन मोर शेयरिंग, वन मोर शेयरिंग। मैम, हम्म। मैडम आई रोड दैट समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलेगा, एंड हम्म। वॉट एवर इज रिटर्न इन आवर फेट द सेम थिंग विल कम। मे बी हम्म। अभी टाइम नहीं आया इसलिए मेरे पास लक्ष्मी नहीं आ रही है। हम्म। ऐसे गलत फेम बहुत था मैडम। वेरी गुड। ओके, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना? नींद से अभी जग गए। ये सब लक्ष्मी माता को पता है, इसलिए ना उन्होंने कैसा सिस्टम रखा है पता है? जब आपके पास आएगी तब मैं आपकी। क्या आप बोल सकते हो, अरे अमृता के पास ना मेरे 10,000 रुपए, या अमृता के पास जो अकाउंट में 10,000 है ना वो मेरे है, क्योंकि उसने मुझे देने हैं। तो उसके अकाउंट में जो 10,000 है ना वो मेरे है। मैं कितना भी बोलूं, वो मेरे है क्या? अनलेस एंड अनटिल शी ट्रांसफर एंड इट कम्स इनटू माय अकाउंट, वो मेरे है नहीं। तो जब वो आपके पास आ जाती है तब वो आपकी। सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, सपोज आपके घर से एयरपोर्ट तक, और आपने कैब बुक कर दी। ओके, कैब के हो गए 400 फॉर एग्जाम्पल।
ओके, उसने आपने उसको स्कैन करके 400 ट्रांसफर कर दिया एयरपोर्ट पे पहुंच के। क्या आप बोल सकते हो, अरे वो 400 रुपये ना वो मेरा है, कि मेरी तरफ से उसके पास गया है, तो अभी जो गया ना वो मेरा है, आपका है वो 400 अभी आपका है, वो 5 मिनट पहले आपका था, पर अभी 5 मिनट बाद वो किसका है, किसी और का है। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? जिसके पास है वो उसकी है। यू कैन नॉट अज्यूम एंड मेक स्टोरीज, अरे उनसे मुझे इतने आने हैं, अरे भैया जब आएंगे ना तब वो आपके हैं। एम आई राइट इन सेइंग? इसीलिए वो अपने पास जब आती है तब वो अपनी होती है। अभी इनका स्वभाव देखो, इनके स्वरूप को समझो। आप घर से ऑफिस निकले, आपने कैब किया, आपके अकाउंट में अभी जितने भी थे उसमें से 400 वो कैब वाले को गए, किसके हो गए, उसके हो गए। कैब वाला घर जाते जाते बच्चों के लिए कुछ लेके गया, चॉकलेट्स लेके गया, उसने ट्रांसफर किए, अभी वो पैसे किसके हो गए, चॉकलेट वाले के हो गए। अभी आप जाओ चॉकलेट वाले के पास, ये वो कैब वाले ने, वो ड्राइवर ने दिया ना पैसा, वो मेरा है, दे दो, क्योंकि मैंने उसको दिया था। कैन यू डू दैट? आपने उसको दिया था, फिर उसने चॉकलेट लिया, सही है, लेकिन उस चॉकलेट वाले को आप बोल सकते क्या वो मेरा था, मुझे दे? अभी वो किसका है, चॉकलेट वाले का है। लक्ष्मी माता इज सो चंचल, और उनको यही पसंद है, उनका स्वभाव ही ऐसे है। अभी ऐसे चंचल स्वभाव वाले एनर्जी को बिठाने का कैसे, टास्क है ना, टास्क है ना, कि कैसे बिठाने का, इनको कैसे बोलने का मेरे पास रहो। हर एक चीज खरीदने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। बाहर जाएंगे, पानी चाहिए, बॉटल खरीदो, चल के नहीं जाना है, कैब से जाना है, पैसे दो। हर एक चीज खरीदने के लिए हमें पैसे चाहिए, है ना। और जब वो आपके पास आती है तब आपकी होती है। अभी सोचो, हम उनको कितना एटीट्यूड दिखाते हैं, और वो हमें कितना एटीट्यूड दिखा रही है। तू कितना भी बोल, जब मैं तेरे पास रहूंगी ना बस उतने टाइम के लिए तेरी। हमें क्या करना है, वो टाइम स्पैन को बढ़ाना है ना, जितना देर अपने पास रहे। अभी लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए, या फिर लक्ष्मी माता को अपने रियलाइजेशन बताने के लिए, फर्स्ट वी विल हैव टू मेक अ कनेक्शन। कनेक्शन कैसे बनाते हैं, आप कैसे बनाते हो? व्हाट्सएप पे हाय भेज के? है किसी के पास उनका व्हाट्सएप नंबर? नहीं है। फेसबुक आईडी है? अच्छा, इंस्टा आईडी है? वो भी नहीं। लिंक्डइन है? तो अभी हमको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम कैसे कनेक्शन बनाएंगे? एजेंट के थ्रू। एजेंट सामने है, कौन है एजेंट? एजेंट कौन है? मैं हूँ। आपके पास चाबी नहीं है ना, तो एजेंट की तो आपको जरूरत पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर आप एजेंट को जानते ही नहीं, तो एजेंट आपको हेल्प करेगा? तो इसके लिए अभी वीडियो ऑन, क्योंकि मैंने आपको पहचानना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं बोल दूंगी इसको तो मैं जानती नहीं, है ना। ओके, एंड व्हाट वी विल डू, इसीलिए मैंने बोला था मुझे अच्छे से देख लो, मेरा फेस याद रखो। ओके, एंड नाउ, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ, मेरा फेस याद रखो। और अभी हम लक्ष्मी माता के साथ
कनेक्शन बनाएंगे। उसके लिए आपको मेरे पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। सो हाउ मेनी ऑफ यू ट्रस्ट मी? अभी तो बोलना ही पड़ेगा ना कि यस आई ट्रस्ट यू। ऑप्शन क्या है आपके पास? दूसरा ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है अभी, है ना? वेरी गुड, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। ओके, नाउ व्हाट विल डू, अभी लक्ष्मी माता का हम एक मंत्र मैं आपको बताती हूँ। ओके, ये मंत्र मुझे लक्ष्मी माता ने बताया कि दिस इज हाउ यू कैन कॉल मी। ओके, अभी ये जो मंत्र है, दोनों हाथ जोड़ के फोकस पूरा हार्ट चक्र पे करना। ओके, क्लोज योर आईज। थोड़ा याद करो, अगर मेरा फेस आपको याद आ रहा है तो आपके हार्ट चक्र पे। नाउ रिपीट आफ्टर मी। आपकी आवाज आपको अच्छे से सुनाई देगी, इतने जोर से यू नीड टू चैंट। We are making connection with the goddess Lakshmi. Take a deep breath in, breathe out. Say thank you to the universe. Say thank you to the spiritual master who is guiding you now. मेरा नाम लेके मन ही मन में बोलिए कि आई चूज यू टू कनेक्ट विद द गॉडेस लक्ष्मी और लक्ष्मी माता। Take a deep breath in, breathe out, and repeat after me. ॐ श्रीलक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ श्री विष्णुप्रियाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीप्रियाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ श्री विष्णुप्रियाय 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 नमः।
ॐ श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ श्री विष्णुप्रियाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ श्री विष्णुप्रियाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ श्री विष्णुप्रियाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ श्री विष्णुप्रियाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ श्री विष्णुप्रियाय नमः। With the closed eyes, keep breathing very slowly. Just focus on your heart chakra. Take a deep breath in और मन ही मन में दोनों हाथ जोड़ के अपने मन ही मन में बोलिए, हे विष्णु प्रिय, आई रियली लव यू। मैं आपके साथ हमेशा के लिए प्यार का कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। आप मुझे आपके साथ कनेक्शन बनाने का आशीर्वाद दीजिए। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, slowly open your eyes. How many of you could feel the energy? Type in the chat box me. एकदम honest reply. Those who felt some energy. कुछ वाइब्रेशन फील हुआ होगा, कुछ दिखा होगा। क्या बात है, क्या दिखा, क्या फील हुआ? थर्ड आई चक्र पे फील हुआ? इमोशनल हो गए? माँ को मिलके इमोशनली होते हैं ना लोग। तो मान लिया ना मैं एजेंट हूँ, मैं कनेक्शन बना सकती हूँ। लेकिन अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी माता को समझने के लिए।
अभी अगर किसी ने वेद पुराण पढ़े होंगे ना तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ये जो लक्ष्मी माता जो है ना अपनी, ये कभी अकेले नहीं होती। ओके। और ये जो लक्ष्मी माता का रूप है, ये जो विष्णु प्रिया है, ये जो विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है, ये आदि शक्ति का ही एक रूप है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक एनर्जी है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में एक एनर्जी है, वैसे आदि शक्ति, लक्ष्मी माता और अपने सरस्वती माता, ये एक एनर्जी है। आप सिर्फ लक्ष्मी माता करोगे और आदि शक्ति और सरस्वती माता का वहां पे प्रेजेंस नहीं है, तो लक्ष्मी माता नहीं रुकती। Understood? जहाँ पे लक्ष्मी माता के साथ सरस्वती माता और आदि शक्ति, आदि शक्ति मतलब कौन? जगत जननी। सरस्वती माता मतलब ज्ञान की देवता। एंड लक्ष्मी माता लव्स कैलकुलेशंस। पूरा हिसाब होता है कि नॉलेज के लिए ये बंदा क्या कर रहा है। ठीक। जगत जननी आदि शक्ति ब्रह्मचारिणी मतलब गुरु का एक रूप है। आपने गुरु के साथ कितना कनेक्शन बनाया है। इवन सरस्वती माता ज्ञान की देवता है। आपके लाइफ में गुरु है कि नहीं? और ये जो तीनों जो एनर्जीज है, आदि शक्ति लक्ष्मी माता सरस्वती, ये साथ में होती है। ये इन तीनों को आप तोड़ नहीं सकते। जैसे तेरे तीन बेस्ट फ्रेंड आप तोड़ नहीं सकते, वैसे ये जो एनर्जीज है, वी कैन नॉट ब्रेक दैट एनर्जी। दीज थ्री एनर्जीज आर टुगेदर। आदि शक्ति, लक्ष्मी माता एंड सरस्वती माता। तो अगर हमें लक्ष्मी माता, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास रहे, ज्यादा समय तक रहे, मतलब हम ऐश्वर्य की लेवल जी सके। ऐश्वर्य किसे कहते हैं? कि है, पैसे है, उस टेंशन नहीं है, नेक्स्ट मंथ का भी टेंशन नहीं है, उसके नेक्स्ट मंथ का भी टेंशन नहीं है, बट स्टिल वी आर वर्किंग बिकॉज इट इज आवर धर्मा। दैट लाइफ इज ऐश्वर्य लाइफ। कि पैसे है मेरे पास, टेंशन नहीं है, फिर भी मैं ये जॉब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा धर्म है, और मेरे ये स्किल की वजह से किसी को फायदा हो रहा है तो मैं ये करूंगी या करूंगा। मुझे बस 1 तारीख को सैलरी मिलेगा इसलिए मैं 12 घंटा काम कर रहा हूँ, नहीं। वो तो मिलेगा ही, वो तो आएगा ही, बट जो 30 दिन मैं काम कर रहा हूँ ना, वो मैं जी रहा हूँ। उस लेवल तक हमें पहुंचना है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दिस कि यस, उस लेवल तक पहुंचना है। वो 30 दिन स्ट्रेस में काम करने के लिए नहीं। दैट इज कॉल्ड एज ऐश्वर्य। कि हमें उस ऐश्वर्य तक पहुंचना है कि पैसे है, लक्ष्मी माता है, फिर भी हम काम करेंगे। आजकल हम काम क्यों करते हैं? सिर्फ लक्ष्मी माता को बुलाने के लिए, और उनको इनडायरेक्टली बोलते हैं एक बार आप आ गए फिर मैं रिलैक्स, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर तो बोलती है फिर तो ना आना ही सही है ना? कभी कभी हम रॉन्ग वाइब्स भी दे देते हैं। ओके। तो भी जब हमें आदि शक्ति लक्ष्मी माता और सरस्वती माता का संगम को बुलाना है, तो सबसे जरूरी एक तत्व अपने लाइफ में होना चाहिए। वो कौन सा? गुरु तत्व। आपको आदि शक्ति के पहचान कौन करा के देगा? का गुरु। लक्ष्मी माता को कौन मिलाएगा? का गुरु। सरस्वती माता आपके पास कौन देगा? आपका गुरु। क्योंकि गुरु हमें क्या देता है?
ज्ञान देता है। वैसे मेंटोर और गुरु में फर्क है, कोच और गुरु में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है? गुरु का रिश्ता दिल का रिश्ता होता है, कोच का रिश्ता दिमाग का रिश्ता होता है। क्या समझा? गुरु का रिश्ता दिल का रिश्ता होता है, प्यार का रिश्ता होता है। और कोच का रिश्ता, कोच मेंटोर बोलो, वो दिमाग का रिश्ता होता है। उस कोच से हम सब्जेक्ट सीखते हैं। अगर आप किसी भी इंसान को अगर आपका कोच या फिर मेंटोर समझ रहे हो ना, आप उससे सब्जेक्ट सीखते हो। मतलब वो एनर्जी आपको सिर्फ वो सब्जेक्ट तक ही हेल्प करती है। लेकिन जब आप किसी को अपना गुरु बनाते हो, तो उस गुरु के साथ आपके जिंदगी में आता है वो ज्ञान। अगर एस्ट्रोलॉजी पता होगी तो कौन सा प्लैनेट है ये? जुपिटर। ठीक है? अभी गुरु के साथ कनेक्शन बनाने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है? अभी हम देखो घर भी देखने जाते हैं, बीच में एजेंट है, तो फर्स्ट वी मेक कनेक्शन विद दैट एजेंट ना। कोई भी बन जाएगा क्या एजेंट? एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, आपकी लेता है कि ये आपके घर में रहने वाला बंदा जेन्युइन है, क्रिमिनल नहीं है ना। और एजेंट आपको भी बोलता है कि ओनर अच्छा है, आपको कुछ टेंशन नहीं है, आप रेंट सिर्फ टाइम पे दिया करो। और फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना के देता है। राइट? वहां तक एजेंट का काम होता है। अभी लक्ष्मी माता के साथ कनेक्शन बनाना है, तो आपका मेरा गुरु शिष्य का रिश्ता होना बहुत जरूरी है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? एक रिश्ता बनना जरूरी है कि नहीं? वरना आप मेरे लिए स्ट्रेंजर हो, मैं आपके लिए स्ट्रेंजर हूँ। आपके लिए मैं जबान दूं तो भी कैसे दूं? अगर आप मेरे पे ही भरोसा नहीं कर रहे हो एज अ गुरु, तो मैं आगे कैसे बात करूं आपके लिए? एम आई राइट इन सेइंग? सो गुरु के साथ कनेक्शन बनाना ऐसे बोल के नहीं होता चैट बॉक्स पे, आई एक्सेप्ट यू एज माई गुरु। ऐसे होता है क्या? वाइफ के साथ शादी करनी पड़ती है ना, आप व्हाट्सएप कर दोगे, चलता है क्या? से कुछ रिचुअल्स होते हैं यार। आप लोग भी फास्ट हो गए बहुत वो व्हाट्सएप और एफबी के चक्कर में। तो ये गुरु शिष्य का एक रिचुअल होता है। जैसे हस्बैंड वाइफ की शादी होती है ना, हम लिख देते क्या, आई एक्सेप्ट यू एज माई वाइफ। चलो कर दिया ना, व्हाट्सएप डन, स्क्रीनशॉट लेके रख दो, चलेगा? नहीं भाई, शादी करनी पड़ती है, चार लोगों को बुलाना पड़ता है, उनको खाना खिलाना पड़ता है, उनके साथ फोटो खींचना पड़ता है। ये सब करने के लिए खर्चा हमें ही करना पड़ता है ना, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। वैसे ही एक गुरु शिष्य का कनेक्शन का एक रिचुअल होता है, उसे हम कहते हैं अनुग्रह। किसने किसने सुना है अनुग्रह के बारे में? वेरी गुड। अनुग्रह मतलब क्या? जैसे एक अपना ग्रह है जुपिटर, है ना, ये प्लैनेट जो है ये एकदम धर्म का प्लैनेट है, एकदम मैच्योर धर्म का प्लैनेट है ये। अभी अनुग्रह मतलब क्या? अनु मतलब पास, नजदीक। अनुग्रह मतलब इस ग्रह के नजदीक। इसलिए जुपिटर को देवगुरु भी बोलते हैं। अगर आपको स्टोरीज अगर पता होंगे ना, माइथोलॉजी स्टोरीज, तो एक है शुक्राचार्य और एक अपने है ये गुरु, देवगुरु, बृहस्पति गुरु। क्या? ये जुपिटर मीन्स बृहस्पति। अभी अनुग्रह जो है वो आपको
इस ग्रह के नजदीक लेके जाता है, किसके? बृहस्पति के। कौन है? देवताओं के गुरु। शुक्राचार्य के पास गए तो किसके बन जाओगे आप चेले? असुरों के बन जाओगे, है ना? अभी आपको डिसाइड करना है, आपको शुक्राचार्य के पास जाना है कि बृहस्पति के पास जाना है। ये चॉइस कंप्लीटली आपका है। ओके। और अभी लक्ष्मी माता का कहना है कि अगर कनेक्शन बनाना है तो यू नीड टू मेक अ गुरु इन योर लाइफ। ओके। क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, 21 डेज मेडिटेशन नहीं कर रहे, हम ये 21 डेज की साधना कर रहे हैं। How many of you know the difference between meditation and sadhana? There is a big difference in meditation and sadhana. मेडिटेशन जो होता है ना, वो आप आपके मन को रिलैक्स करने के लिए, शांत करने के लिए करते हो, कि थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स होता है, बॉडी लाइट होता है, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाता है। दैट इज व्हाट इज मेडिटेशन। साधना जो होती है ना, वो आपका गुरु आपसे करा के लेता है, by making connection with your crown chakra and higher consciousness। इसीलिए जो भक्ति रस अटेंड करते हैं ना, को महादेव के दर्शन होते हैं। मतलब जिस रूप में आपने महादेव को देखा होगा, वैसे महादेव के दर्शन होते हैं, किसी को लक्ष्मी माता के दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका गुरु सामने बैठा हुआ होता है। अगर ऐसे महादेव को आपको मिलना है तो कहीं भी आपको नींद में भी दिखेंगे फिर? नींद में क्यों नहीं दिखते? सिर्फ भक्ति रस में क्यों दिखते हैं? सिर्फ हीलिंग में सामने बैठे हो तब भी क्यों दिखते हैं? महादेव का आपको मिलना है तो कभी भी दिखेंगे ना, आप कभी भी आंखें बंद करो, आएंगे, दिख जाएंगे। ऐसे नहीं होता ना। जब आपका गुरु सामने होता है तब आपको भक्ति रस में ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, वाइट लाइट दिखता है। मीन्स व्हाट? जब साधना कर रहे होते हैं तब आपका गुरु आपका क्राउन चक्र का कनेक्शन हायर कॉन्शियसनेस से, मतलब स्काई एलिमेंट से, स्पेस एलिमेंट से कनेक्ट करता है। एंड व्हेन यू आर रियली ट्रस्टिंग योर गुरु सबकॉन्शियसली, तब आपको आपके मन में जो देवता है उनके दर्शन होते हैं, किसी को वाइट लाइट दिखता है। व्हेन यू आर सबकॉन्शियसली ट्रस्टिंग योर गुरु। अंडरस्टूड? साधना के लिए गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन के लिए सिर्फ मेडिटेशन ही करना है, गुरु करो नहीं करो चलेगा। लेकिन अगर आपको साधना करनी है, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, तो गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं मेरे गुरु से कमिटेड हूँ कि जो मुझे गुरु बनाएगा उनको ही मैं ये साधना दे सकती हूँ। अपने गुरु अपने हमसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं, पता है ना? मेरे भी गुरु ने मेरे से गुरु दक्षिणा मांगी हुई है। मेरे गुरु मतलब साईं बाबा, कि उन्हीं लोगों को मदद करना जो तुम पे भरोसा करते हैं। जो भरोसा नहीं करते वो आएंगे जाएंगे, उनको आने दो और जाने दो। इसलिए आई लव द पीपल हु रियली एबल टू ट्रस्ट अस। उनके लिए हम अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये भी हमारे गुरु की गुरु दक्षिणा है कि जिसने आप पे विश्वास रखा है उसको मदद करनी, वो धर्म है मेरा, वो ड्यूटी है मेरी। और इतना बड़ा कमिटमेंट है तो उतनी सिद्धि भी है कि आप जो मुंह से बोल रहे हो वो और आप जो बिहेव कर रहे हो वो, उसमें अंतर है कि वो सेम है। उतनी तो आंखें उन्होंने स्ट्रांग बनाई दी है भी, इतनी साधना कर करके। अंडरस्टूड?
स्पिरिचुअल लाइन में ऑलवेज योर एक्शन टॉक्स। आप कितनी बोल बच्चन करते हो, आप कितना फ्लुएंट इंग्लिश व्हाट्सएप पे लिखते हो, आप कितना मुझे प्लीज लिखते हो, आपको क्या लगता है? आपने मुझे लिखा कि यू लुक वेरी ब्यूटीफुल आर, तो मैं आपको अनुग्रह दूंगी, तो मैं आपको साधना दूंगी? इट इज नॉट लाइक दैट। आप मुझे रोज भी लिखोगे ना, आप कितनी खूबसूरत दिखती हो, तो भी मैं आपके चक्कर में नहीं आने वाली। अंडरस्टूड? वे इतनी साधना से तो व्हाट्सएप के भी वाइब्स हमें समझ में आ जाते। नाउ हियर आई कैन सी few faces who are already my Anugrahit student. Some of them are already Navavida student also. नवविदा मतलब आगे की लेवल है। अनुग्रह मतलब आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया। नवविदा मतलब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में चले गए। नवविदा में आपको पता चलता है कि भगवान मतलब क्या। एग्जैक्टली मैंने महादेव को देखा मतलब किसको देखा? सच में महादेव ऐसे दिखते हैं क्या? गले में स्नेक और क्या, गले में मूंड माला, अभी भी वैसे ही है क्या? सच में सरस्वती माता कैसी दिखती है? नवविधा भक्ति में यू विल लर्न टू सी द हायर कॉन्शियसनेस की एग्जैक्टली ये एनर्जीज कैसी होती है, और इनको हम अपने 5 सेंसेस से कैसे फील कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट नवविधा। लेकिन उसके पहले देर इज अ स्टेप ऑफ अनुग्रह। Okay. कोई है यहाँ पे अनुग्रह? एग्जैक्टली अनुग्रह के बाद क्या होता है ना, we will have few sharings, 1 or 2 sharing. Dipti, can you share you before Anugrah or Navavida and after Navavida? Short feedback. प्रणाम गुरु माँ। बेसिकली अनुग्रह से एक तो गुरु के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कनेक्शन बन जाता है। और जैसे हम बेसिकली अगर जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हैं तो एक रास्ता दिखाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता तो है ही है। तो ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ जब हम चलते हैं तो हमें मतलब एक तो अपनी लाइफ तो हमारी बेटर होती है, प्लस और रिलेशनशिप्स और सब चीजें आपको समझ में आने लग जाती हैं, लोग समझ में आने लग जाते हैं। एंड प्लस हम गुरु की हेल्प भी कर सकते हैं आगे जो वो करना चाहते हैं उसमें। तो इनको पूछो आपका आपकी लाइफ बेटर हुई क्या, पूछो इनको। दे आर आस्किंग यू तुम्हारी लाइफ बेटर हुई? तो पूछ रहे हैं। हाँ आपसे तुम्हें हाँ पूछ। मेरी तो हुई है, आपको पता ही है गुरु माँ। की हो रही? बोलते ना मेरी तो हो मेरी गई, आपकी भी कर लो। मेरी तो 360 डिग्री टर्न हुई है। पूरा थ्री ही। सिक्सटी डिग्री टर्न हो गई। इसीलिए मैंने हाँ। कहा हाँ, कि गुरु का कनेक्शन है बहुत जरूरी है। वो दिल का होता है, दिमाग का नहीं होता। ओके। और कोच का, मेंटर का जो कनेक्शन होता है वो दिमाग का होता है। ओके। अभी अपने हमने आपने सुना भी होगा कि भगवान प्यार के भूखे होते हैं, और वहां हम दिमाग लेके जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? सच बोलो, है कि नहीं? हम सब दिमाग से कैलकुलेशन करते हैं, भगवान का भी, पैसों का भी, लक्ष्मी माता का भी। ओके। नाउ वी विल डू 3 गुरु वंदना। ओके, पूरे दिल से। ओके। और अगर आप लोगों को फील होता है मेरे साथ कुछ कनेक्शन, कोई जबरदस्ती नहीं, मेरे साथ अगर वो फील होता है कनेक्शन, एंड इफ यू रियली फील कि यस आई वांट टू मेक दैट कनेक्शन। ओके। अगर इन 3 गुरु वंदना में फील हुआ, अगर लक्ष्मी माता को फील किया होगा तो गुरु तो शायद फील हो भी जाएगा, पता नहीं, बट इट इज अगेन अप टू यू। अगर वो कनेक्शन फील हुआ तो आई विल सेंड यू 1 गूगल फॉर्म। ओके, अनुग्रह का जो प्रोसेस हम कल करेंगे। ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट द साधना टुमारो इटसेल्फ। ठीक है? तो ये अनुग्रह का फॉर्म मैं भेजूंगी। अगर आपको कनेक्शन फील हुआ देन यू विल हैव टू फिल दिस फॉर्म। ओके, रेडी? खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। दोज हु आर ऑलरेडी अनुग्रहित,
सी क्या कनेक्शन फील करते हो, कुछ मिसिंग है क्या, कुछ करना चाहिए क्या, कुछ एक्शन मिसिंग है क्या. ओके, फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा. टेक अ डीप ब्रीथ इन, breathe out, hold your both the hands together. And take a deep breath in, breathe out with the closed eyes. Focus on your heart. Become aware about your energy. Ask yourself, should I really go ahead with the Anugrah? Take a deep breath in, breathe out, and slowly open your eyes. Slowly open your eyes. क्या फील हुआ? Now those who felt a connection and really felt ke I accept you as my guru. Okay, fill this Google form. Okay, Anugrah we will be doing tomorrow. Those who have already taken the Anugrah, you can also fill this form. अगर आपको आज कुछ फीलिंग हो गई, फीलिंग अगर आई होगी तो, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स है, एक बार मोबाइल चार्ज किया फिर 3 महीने चार्जिंग पे ही नहीं लगाया, मतलब अनुग्रह लिया फिर चार्जर घुमा दिया. अगर वापस चार्ज चार्ज होना चाहते हो, यू कैन फिल दिस गूगल फॉर्म. ओके, सोचना है, सोचने का टाइम लीजिए. सोचना है मतलब ब्रेन को पूछना है. ओके, जब हम डबल डबल सोचते हैं मतलब हम ब्रेन ब्रेन को पूछना चाहते हो. ब्रेन को पूछना है तो अनुग्रह मत लीजिए. हार्ट का ही सुनने वाले होंगे तो फिर वो फॉर्म भर दीजिए. ओके,
अच्छा, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस. अनुग्रह मतलब एग्जैक्टली क्या? अनुग्रह इज जस्ट अ connection with you. You accept us as a guru, you trust us as a guru. It's a heart to heart connection and complete trust. ओके, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो लॉजिकल लोग बनाते हैं. ओके, इसमें ब्रेन का कुछ कनेक्शन नहीं है. इसमें सब दिल का कनेक्शन है, हार्ट का कनेक्शन है. ओके, अगर आप हार्ट से गुरु मानते हो, मान सकते हो, गुरु का रिस्पेक्ट कर सकते हो, गुरु पे ट्रस्ट कर सकते हो, तो ये जर्नी आपके लिए है. ओके, और जो गाइडेंस हम देते हैं उस अनुग्रह के प्रोसेस में आपने पहले गुरु किया होगा, आप नॉनवेज खाते हो, ये ऐसे कुछ कंडीशंस नहीं है. अगर आपने पहले भी किसी का अनुग्रह लिया होगा, देन टू यू कैन प्रोसीड विद दिस अनुग्रह. इवन इफ यू ईट नॉनवेज, दैट इज ऑल्सो ओके. कभी कभी स्टूडेंट पूछते हैं कि हम नॉनवेज खाते हैं तो हम अनुग्रह ले सकते हैं क्या? तो वो कंडीशन नहीं है. यू कैन स्टिल टेक द अनुग्रह. इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर गुरु. ओके, वो एक कॉर्ड बन जाती है गुरु के साथ. ओके, तो मैंने ये लिंक इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दी है, जूम चैट बॉक्स में भी है. लेकिन जूम चैट बॉक्स, वंस वी विल क्लोज दिस मीटिंग, ये चला जाएगा. व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिंक है. ओके, एंड द अनुग्रह विल बी टुमारो 9 PM. जिन्होंने ऑलरेडी लिया है वो भी अटेंड करो अगर चार्ज करना है तो. ओके, एंड दोज हु आर एबल टू एक्सेप्ट मी एज ए गुरु, उनसे ही मैं ये साधना करा के ले सकती हूँ. इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट मी एज अ गुरु, दैट इज ऑल्सो ओके, वेरी मच फाइन. मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा. ओके, बट सिंस आई एम कमिटेड टू माई डिवाइन एनर्जीज, इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट मी एज अ गुरु, मैं साधना आगे की नहीं सिखा पाऊंगी. सिंस इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट साधना, ये इसीलिए है कि एटलीस्ट वो जो ट्रांजैक्शन है ट्रस्ट का, वो होना बहुत जरूरी है. ओके, वी आर नॉट हियर टू जस्ट सेटिस्फाई आवर क्यूरियस माइंड और क्यूरियस ब्रेन. ठीक है. ओके, आई एम श्योर आपको आज बहुत मजा आया होगा आज के सेशन में. लक्ष्मी माता को लेके, पैसे को लेके काफी कुछ रियलाइजेशन हुए होंगे. और एक कॉमन रियलाइजेशन हम सब में आज है, आई बिलीव, कि द वे वी आर हैंडलिंग लक्ष्मी और द वे वी आर हैंडलिंग मनी is not the way we supposed to handle, right? तो इसका कुछ अलग तरीका है, राइट? और वही तरीका, वही साधना हम दिल से करेंगे आगे के 21 डेज तक. ओके, सेशन अच्छा लगा होगा, कनेक्शन फील हुआ होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में फीडबैक शेयर करने को कंजूसी मत कीजिए. ओके, इसी पे से पता चलेगा आप कितने कंजूस हो कि दिलदार हो, है ना? ओके, सो डू शेयर योर फीडबैक. थैंक यू फॉर द सेशन ऐसा मत लिखिए, तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. ठीक है ना? सच हो रही है ना बात जो कमलेश जी ने कही, मुंह पे बोल देती है, सोचती नहीं है बुरा लगेगा सामने वाले को, क्या लगेगा, है ना? ये कमलेश जी का सुन सुन के थोड़े से वो गुण मेरे में आ रहे भी. वैसे मजाक कर रहे हो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. एंड आशा है कि अगले 20 डेज यही सब टीम साथ में रहेगी. ओके, डू शेयर अनुग्रह, डू फील दिस फॉर्म. वेरी गुड, थैंक यू चंद्रशेखर जी. ओके, थैंक यू एवरीवन. ओम नमः शिवाय. बाय बाय. सी यू ऑल टुमारो 9 ओम नमः PM. शिवाय.